Hello guys and welcome back to this amazing channel. This is Abhinav. In this particular video, we will discuss the first 5 problems from A to E of Code Forces round 957. Okay, so this is what we will discuss in this particular video. I will say that the problems were of good level. The first 4 problems are really easy, but yeah, fifth problem is of actually a good level. So we'll discuss that all. I was planning to record for this F and G also, but you can see still it's very late. It's being around 1 at night. I'm recording this, so I was not able to solve that and record. But yeah, I will try to maybe make the video later whenever I will get time. Okay, amazing. So let's start all the problem one by one. So the very first problem is only pluses. This is a very basic problem where you are given with three integers a, b and c, and what the monk is saying, monk can choose any of these integers and can perform a particular operation 5 number of times. Operation is simply that he can increase the value of by 1. So basically problem क्या है कि monk has three values a, b and c. On थ्री वैल्यूज को इंक्लूसिव वो 5 बार वैल्यूज इंक्रीज कर सकता है. ही कैन इंक्रीज वैल्यू 5 times. So let's say he increased 2 times a, 3 times b and 0 times c. Maybe 1 times a, 2 times b and 2 times c. So basically all the possible combination, total 5, can be increased. And by doing that, you have to find the maximum value of a into b into c, which is possible, right? So in this problem, we don't have to apply any logic, any concept. This is a very basic problem of brute force. Why I'm saying brute force? Because they are saying at most 5. So for all the possible combination, you will check. पहला possible combination क्या होगा? Let's say 0 0 5 means you will increase, let's say 0a 0b 5 5c. Then it can be 0 1 5, then 0 1 4, then 0 2 3, then 0 3 2, then 0 4 1, then 0 5 0. Now you can start maybe with 1 0 4, then 1 1 3, and so on. So you will check for all the possible combination, and whichever combination is giving maximum product, that will be your answer. ठीक है. तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं. अब देखो हम क्या कर रहे हैं. What we are doing is here. This takes some time to open. Yeah. So I'm doing the same. So I'm first having a loop of I, j and k. Means I will increase a I times, j b j times and c k times. So overall, first of all, the value of I plus j plus k should not be greater than 5. If it is greater than 5, I'm continuing. Else I'm finding the maximum value of their product, and whatever will be the maximum value amongst all the possible combination, that will be your answer. वो आपका आंसर हो जाएगा, right? So this is how this is what we are actually doing in this particular video, right? Amazing, amazing. Now moving forward to the next problem, it is angry monk. This is a problem again where they are saying that the monk is actually having some potatoes, and they cut the potatoes into some k pieces. Okay, some k pieces, maybe they have cut the potato. Okay, now what this k1 has to do, he has to again join all the potato, and for joining the potato, he can join in a manner only. He can do two operations. So for example, ये आपके potatoes कुछ इस तरीके से divide हो चुके हैं, right? Your potatoes are divided in this way. So what the that K1 can do, K1 can pick a particular element AI, and he can pick a particular element AJ, which is just 1, and he can combine both AI with 1. So it will become a single potato of size AI plus 1. बट अब आपको कितने वन मिलने, मान लो आपने एक बार 3 और 1 को ऐड कर लिया, अब तो कोई वन है नहीं. नाउ यू डोंट हैव एनी अदर वन. तो आप वन बना भी सकते हो. हाउ यू कैन क्रिएट वंस? सो बेसिकली द सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेशन इज दैट if there is a potato with weight AI, K1 can actually break it into two different potatoes of weight AI minus 1 and 1. तो ये भी पॉसिबल है. ठीक है. तो देखो बताएं आपको एजेंडा क्या होगा बेसिकली, कि बिकॉज K1 can combine
अ पोटैटो ऑफ साइज 1 ओनली, मतलब एक पोटैटो तो आपका बड़ा होगा बट उसके साथ सिर्फ 1 साइज के पोटैटो ही कंबाइन होंगे, राइट? तो हमें सारे पोटैटोज को वी हैव टू ब्रेक इन साइज ऑफ 1 ओनली एंड देन ओनली वी कैन कंबाइन, दैट इज द ओनली वे। बट कोई एक पोटैटो होगा फ्रॉम विच वी कैन स्टार्ट, और वो कौन सा पोटैटो होगा? बिकॉज वी हैव टू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। हमें क्या करना है? हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन फाइंड करने हैं। आप देखोगे तो हम क्या करेंगे, द पोटैटो विच इज ऑफ द ग्रेटेस्ट साइज वी विल नॉट टेक इट। तो हम क्या करेंगे, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट द गिवन एरे, तो इट विल बिकम 1 2 3 5। हमें पता है कि जो लास्ट वाले पोटैटो है दिस इज ऑलरेडी ऑफ द लार्जेस्ट साइज, तो आई विल नॉट ब्रेक देम, but all the other potatoes should be breaked into pieces of 1 1 and then they can be connected or you can say added with this 5 का potato। तो ये 3 वाला जो potato है वो क्या होगा, एक ऑपरेशन में क्या होगा, this 3 will become 2 and 1 and then 1 will be added। अब this इस 2 के लिए भी क्या होगा, it will become 1 and 1, then this 1 will be added and now remaining 1 will directly be added। 2 के लिए क्या होगा, so if you will see eventually for a potato of size n it is taking 2 n minus 1 operation to get attached। why क्योंकि देखो हो क्या रहा है कि जो आपके अगर आपका पोटैटो साइज n है तो आपको n माइनस 1 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, आपको n माइनस 1 टाइम्स यू हैव टू फर्स्ट ब्रेक इट एंड देन द ब्रेक पार्ट यू हैव टू अटैच इट। तो n माइनस 1 टाइम्स यू हैव टू परफॉर्म 2 ऑपरेशंस और लास्ट में एक ऑपरेशन फॉर द रिमेनिंग 1, तो इवेंचुअली इट विल बी 2n माइनस 1 ऑपरेशंस, राइट? वो आपको करने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम सो हम लोग लास्ट पोटैटो को छोड़ के फॉर ऑल द अदर पोटैटोज वी हैव टू डू दिस मच नंबर ऑफ ऑपरेशंस एंड यू कैन सी दैट इज व्हाट आई डिड। तो आप देखोगे अगर हमारे कोड में व्हाट वी डिड इज, तो हमने ये चीज़ करी हुई है। इफ यू विल सी हियर वी डिड द सेम, व्हाट वी डिड, वी सिंपली सॉर्टेड द एरे, okay, we simply sorted the vector। After sorting the vector we are not taking the last element, I'm just starting from 0 to k minus 1, like 0 to k minus 2, and for every potato n I am adding 2n minus 1 in the answer, right? So this is a very basic problem how we can solve it. I hope that you have got the understanding of this particular video, of this particular problem, but still if you have any doubt you can ask that to me in the comment section or you can join my telegram to ask your doubt, okay? Amazing। अब आते हैं आगे, now let's move forward। Now problem number C is there। This C problem is actually a observation based problem। Let me tell you what the problem is। Problem says that कि you are having 3 numbers n, m and k, ठीक है? Now there are 2 functions given to you। A function gi means number of elements in परम्यूटेशन ऑफ n। तो आपको एक परम्यूटेशन निकालना है n का, तो इन परम्यूटेशन ऑफ n और उस परम्यूटेशन का प्रीफिक्स, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन परम्यूटेशन ऑफ n प्रीफिक्स i, तो i साइज का प्रीफिक्स निकालना है ऑफ द परम्यूटेशन ऑफ n एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट परम्यूटेशन ऑफ n विच आर लेस देन इक्वल टू m, मीन्स विच आर नॉट ग्रेटर देन m। हमें लेस देन इक्वल टू m चाहिए, वो जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऐसे जो कि लेस देन इक्वल टू m है और जो कि फर्स्ट आई एलिमेंट्स हैं वो g ऑफ i हो गया, और f ऑफ i है नंबर, सेम चीज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेम परम्यूटेशन ऑफ n इन प्रीफिक्स ऑफ i, सो परम्यूटेशन ऑफ n के प्रीफिक्स i में विच आर एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो अब देखो दे आर सेइंग शुड नॉट बी लेस देन के, सो लेस देन के नहीं होने चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो gi क्या होता है, gi इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन परम्यूटेशन ऑफ n विच आर लेस देन इक्वल टू m एंड fi इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन परम्यूटेशन ऑफ n विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, ठीक है? और ये हमें हर एक प्रीफिक्स के लिए निकालना है, दिस वी डोंट हैव टू चेक फॉर जस्ट परम्यूटेशन ऑफ n, वी हैव टू चेक फॉर एवरी प्रीफिक्स ऑफ i। लेट मी गिव यू एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारी जो n की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू 4 है, एंड लेट्स से हमने परम्यूटेशन ले लिया 3 1 5 2 4। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर परम्यूटेशन, ओके? तो अब इसमें अगर हम बात करें g1 मीन्स एंड f1, तो मैं एक काम करते हैं कि इस तरीके से
जी एफ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो जी वन की वैल्यू क्या होगी, मीन्स यू विल जस्ट कंसिडर दिस मच पार्ट। अब देखो इस पार्ट में कितने एलिमेंट्स हैं जो लेस देन इक्वल टू एम है, एम टू है, एक भी एलिमेंट नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट लेस देन इक्वल टू एम, इट विल बी जीरो। इन दिस मच पार्ट देयर इज वन एलिमेंट, ओके। दिस मच पार्ट अगेन देयर इज ओनली वन एलिमेंट, दिस मच पार्ट वी हैव टू एलिमेंट्स क्योंकि ये भी लेस देन इक्वल टू एम है, एंड दिस मच पार्ट अगेन स्टिल टू एलिमेंट्स। एफ निकालते हैं, एफ में एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू के, इसमें नहीं है, नो, यस, इसमें नहीं है, और सॉरी यहाँ पे वन आएगा, और फाइनली टू, यहाँ पे एक और ये भी आ जाएगा, राइट। तो इवेंचुअली इफ यू विल फाइंड, so this will be the value of g and f for all the values from 1 to 5, ठीक है। आपको निकालना क्या है, you have to find the sum of all the values of f and all the value of g and the difference of that। तो पहले सारी वैल्यूज ऑफ f का सम निकालें, 4 है, यहाँ भी 4 है, उनका डिफरेंस 0 है। इस केस में आप देखो इस परम्यूटेशन के लिए उनका डिफरेंस 0 आ रहा है, बट यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस। They are asking that what should be the permutation so that this difference is maximized। अब देखो इसमें एजेंडा क्या है, एजेंडा इज कि हमें क्या करना है, हमें एफ आई माइनस जी आई का जो सम है वो हमें मैक्सिमाइज करना है, मीन्स इवेंचुअली वी हैव टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एफ आई फॉर ऑल द आई। तो हमें एफ आई की वैल्यू सारे आई के लिए मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है। तो अब देखो जो ये एफ आई की वैल्यू है ना, वो एक आई विल से कुमुलेटिव डिफरेंस पे आ रही है। अगर आप देखोगे ना, पहले मैं अगर बैक करूँ तो मैं इस पर ही दिखाता हूँ, तो यहाँ देखो आप, जो ये वैल्यूज है ना जी आई और एफ आई की, द वैल्यूज ऑफ जी आई एंड एफ आई, दे आर लिटिल बिट यू नो क्यूमुलेटिव सम इज देयर। मतलब आप देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जीरो था, फिर वन फिर टू, क्योंकि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो लास्ट वाला भी कंसिडर हो ही रहा है, उसके बाद में एक और ऐड हो जा रहा है, राइट। तो लास्ट प्रीवियस एलिमेंट ऑल्सो जो कि कंसिडर था हमारे पहले प्रीफिक्स में, वो अगले प्रीफिक्स में कंसिडर हो रहा है, तो वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो रही है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो वैल्यू ऑफ एफ आई है वो सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। तो देखो इस केस में हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए इस केस में कि हमें एक ऐसा परम्यूटेशन मिल जाए वेयर द वैल्यू ऑफ एफ आई इज वेरी ग्रेटर। और वैल्यू ऑफ एफ आई बड़ी कब होगी, वैल्यू ऑफ एफ आई बड़ी कब होगी, व्हेन वी विल गेट दोज एलिमेंट फर्स्ट जो कि के से बड़े हैं, बिकॉज एफ की वैल्यू तब बढ़ेगी जब हम लोग के से बड़े एलिमेंट्स पहले लेंगे। तो अब देखो के 4 है, तो आई विल फर्स्ट टेक दोज एलिमेंट विच आर लेस देन विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू के, जो कि है 4 and 5। अब तो हमने इस ये चीज़ करके हमने एफ की वैल्यू बढ़ा लिया, बिकॉज द एलिमेंट विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू के वो पहले आ चुके हैं। तो जब आपकी एफ वाली एरे बनेगी 1 2 3 4 5, तो उसमें पहले ही 1 और 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि जो वैल्यू ऑफ जी है, द वैल्यू ऑफ जी शुड बी डिक्रीज। नाउ आई वांट वैल्यू ऑफ जी टू बी डिक्रीज। अब if I want the value of d should what g should be decreased, that means I will to take elements less than equal to m at the very last। तो जो less than equal to m वाले एलिमेंट वो वेरी बिल्कुल लास्ट में लेंगे। तो इन द मिडिल आई विल टेक एलिमेंट्स फ्रॉम 2 to k, बेसिकली 2 and 3 वो मिडिल में आएंगे, इवन नॉट 2, only 3। now the elements less than equal to m will come which is 2 and 1। तो दिस विल बी योर परम्यूटेशन। इसके लिए आप देखो वैल्यू ऑफ एफ विल बी 1, देखो क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू के है, देन 1 more 2, देन 2 2 2 2 ही रहेगा। अब देखो इसमें से एफ की सम आ रहा है 9, एंड इफ यू विल सी द जी, तो जी आप देखो यहाँ पर 0, बिकॉज इट इज नॉट लेस देन इक्वल टू एम, अगेन 0, अगेन 0, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2, तो इट्स जस्ट 3। नाउ यू कैन सी डिफरेंस इज 6 एंड दिस इज द मैक्सिमम डिफरेंस, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता है, यू कैन नॉट गेट डिफरेंस मोर देन दैट, ठीक है। अब तो यू हैव टू फाइंड अ परम्यूटेशन वेयर दिस थिंग इज हैपनिंग, और परम्यूटेशन बहुत क्लियर है। एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट आई विल प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम k टू n, then I will print number between m to k, but m is not included, then I will print numbers from 1 to m, that's it। यही आपका परम्यूटेशन बनेगा, बिकॉज आई वॉन्ट नंबर्स ग्रेटर एंड इक्वल टू के पहले, सो दैट एफ शुड बिकम ग्रेटर, एंड आई वॉन्ट जी स्मॉलर, सो आई विल मेक नंबर्स लेस देन इक्वल टू एम एट द लास्ट, राइट।
तो माई एजेंडा विल बी फर्स्ट प्रिंट नंबर्स फ्रॉम k to n, then print numbers from m plus 1 to k, and then print numbers from 1 to n. So you can see what we did for this. तो हम क्या कर रहे हैं इसके लिए, हाँ, तो we are first printing numbers from n to k और k to n, then m plus 1 to k, मीन्स k पहले इंक्लूड हो चुका है, so it should be I think k minus 1 because k is already done, right? And then finally from 1 to m, right? This is what we are doing, and this will actually give you a right solution. I hope that you have got the understanding of this particular video, of this particular solution, कि how we have actually done it. Okay, amazing, बढ़िया. अब बढ़ते हैं आगे. Now let's move forward. So next is problem number D, which is test of love. Okay, so now let's see what this problem says. This problem says that you have a person called Julian who has to swim through some swamps. So basically क्या हो रहा है कि आपके पास एक proper, I will say, there's a river and the river contains n section, and each section will either have a log means some step where Julian can stand, then it can also contain a crocodile or a water या फिर water. ठीक है, अब एक बार में what Julian can do, तो Julian will start from the very start point. Now what Julian can do is that at once he can either jump m times, means at most m times, m से ज़्यादा बार jump नहीं कर सकता है, तो Julian can not jump more than m times. He or she can jump from 1 to m times, right? That's the first thing. Second thing is that if he is in the water, अगर वो water में है तो वो फिर वाटर के नेक्स्ट सेगमेंट में स्विम करके जा सकता है, एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता, एक बार जा सकता है सिर्फ नेक्स्ट सेगमेंट में, पर हो सकता है कि नेक्स्ट सेगमेंट में आपका लॉग भी हो सकता है या फिर नेक्स्ट सेगमेंट में आपको क्रोकोडाइल भी हो सकता है, तो वो भी एक चीज़ है. बट ये है कि अगर आप वो अभी वाटर में है तो वो स्विम करके नेक्स्ट सेगमेंट में ही जा सकता है, और अगर वो उस सेगमेंट में चला गया जहाँ पे क्रोकोडाइल है, मतलब ही विल गेट किल्ड, तो वहाँ पर कभी नहीं जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा अगर अगले पे क्रोकोडाइल है. ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या कोई ऐसा तरीका है with which that this anchor can reach the last. And there is one more, there's a point. First point is that when the anchor will jump, he can only jump at most m times. He cannot jump more than m times. ठीक है, तो m से ज़्यादा बार वो जंप नहीं कर सकता है. 1 minute. ठीक है, तो he कैन नॉट जंप मोर देन m टाइम्स. एंड ऑल्सो स्विम में भी एक कंडीशन है, ही कैन ऑल्सो नॉट स्विम मोर देन k मीटर्स, तो वो स्विम भी k मीटर से ज़्यादा नहीं कर सकता है. ही कैन ऑल्सो नॉट स्विम मोर देन k मीटर्स. तो ये दोनों केसेस हैं. अब देखो, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग. वाई? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे वी हैव टू चूज कि when he will swim and when he will jump, and even for the jump we have to choose कि एक बार कि m बार कि कितनी बार jump करना है, because there is a jump from 1 to m, कितनी बार भी कर सकता है. So it's a problem of dynamic programming because we don't know कि at what jump कितना वो सही रहेगा, right? and एक कंडीशन है कि हमें ये पता है कि जो स्विम है वो एट मैक्स k बार हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि मे बी मोर देन k स्विम से ही कैन रीच द एंड. बट नो, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्विम्स. जितना कम स्विम करके ही कैन रीच द एंड पॉइंट, दैट इज द बेस्ट थिंग. अब हाउ वी कैन फाइंड दैट, हम ये कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, ये देखते हैं. देखो, हम इस प्रॉब्लम को एक लाइक बेसिक वी विल यूज डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट अ रिकर्सिव फंक्शन. ठीक है, एंड दिस रिकर्सिव फंक्शन विल गिव यू द मिनिमम स्विम रिक्वायर्ड by him. कैसे? तो this recursive function will store one thing I, which is the current index or the current section जहाँ पर आपका वो बंदा है जो उसका नाम एंकर है. ठीक है, और फिर उसका s होगा, m होगा, n होगा, के सारी चीज़ें होंगी. ठीक है, आप देखिए हमारा एजेंडा क्या है, हमारा लॉजिक क्या है. मान लो कि इस तरीके से हमारा स्ट्रिंग दिया गया है. ठीक है,
तो सबसे पहले तो इन दैट स्ट्रिंग आई विल ऐड वन मोर लॉग, आई विल ऐड वन मोर लॉग। तो इतना स्ट्रिंग आपको दिया गया था which is actually n parts of the segment. I have added one more log and I will assume कि अभी आपका जो anchor है he is at this particular log of index number 0. तो what I will do, I will also explain my code side by side. ठीक है, तो मैं एक बार कोड ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो अब देखो इनिशियली मैंने क्या किया, आई हैव दिस स्ट्रिंग एस, in that string s I have added this l at the start and I also increase the size of the s obviously। तो अब देखिए कि यहाँ पर l ऐड हो गया, इतना स्ट्रिंग था हमारा, I have added the l also। l मतलब यहाँ पर अभी आपका जो एंकर है वो है, ठीक है, अमेजिंग। अब वी आर मेकिंग रिकर्जन कॉल एंड दिस रिकर्जन कॉल इज टेलिंग अस व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ स्विम्स जो कि रिक्वायर्ड है, और अगर वो स्विम्स द मिनिमम नंबर ऑफ स्विम्स आर लेस देन इक्वल टू के, क्योंकि हमें के स्विम्स ही करने हैं। तो if this swims is less than equal to k, answer will be yes, else answer will be no। अब देखते हैं ये कैसे निकल रहा है। तो यहाँ पर we have used the very basic DP, very basic dynamic programming solution is there। क्या solution है कि I is the current index or the current segment of our river। तो if I is greater than equal to n, कि अगर आपका I n या फिर n के बाद जा चुका है, means basically if that I has reached the second bank or the end of the river, that means river return zero। return zero मतलब कि अब no more swim is required, because ये recursion function क्या कर रहा है, this recursion function is finding minimum number of swims। इसका मतलब है कि अब कोई भी और swim required नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे तो डीपी केस हम लोग मेमोराइज कर रहे हैं, सिंपल। अब देखो इफ एस आई इज सी, मतलब अगर वो एक क्रोकोडाइल के पास पहुंच चुका है, इफ इन अ रिकर्जन कॉल योर एंकर हैज रीच द क्रोकोडाइल, देन आई विल रिटर्न इंट मैक्स, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अगर क्रोकोडाइल में आ चुका है मतलब वो रिकर्जन कॉल से पॉसिबल नहीं है। तो इंट मैक्स जब आएगा इसका मतलब यही है, दैट मीन्स ओनली कि भाई इन्फिनिटी नंबर के बाद भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आता है अगर वो W पे, तो अगर आपका जो एंकर है वो अगर अभी वाटर पे, इफ एंकर इज करेंटली एट वाटर, तो उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, then he does not have any other option, because if anchor is at water then he has only one option to swim to the next segment। तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो नेक्स्ट सेगमेंट में स्विम कर जाए, he does not have any other option। क्योंकि अगर वाटर में है तो जंप भी नहीं कर सकता, he can only swim, and if he will swim then the value will increase by 1। so you can see in my answer I'm adding 1, then I'm making a recursion call for the next section। तो 1 क्यों ऐड किया, बिकॉज वो एक ऑपरेशन स्विम का है, तो उसने एक बार स्विम किया एंड देन नेक्स्ट रिकर्जन कॉल विल मेड। बट अगर वो क्रोकोडाइल भी नहीं है, वाटर भी नहीं, मतलब मीन्स ही इज करेंटली एट अ लॉग। अब इफ ही इज करेंटली एट अ लॉग ही कैन एक्चुअली मेक जंप्स, बट हाउ मच जंप, कितनी जंप, so he can make any number of jump between 1 to m, and for all the number of jump between 1 to m I will make recursion calls, and जो भी recursion call का minimum आएगा, because हमें minimum number of swims निकालने हैं ना, वो हम आंसर में रिटर्न करते हैं। और फाइनली if our swims are less than equal to k, I will print yes or print no। Okay, so guys this is actually a dynamic programming solution you can see, which we actually have applied here, right, which we actually have applied here। if you even see the question also, so it is actually asking us that only, just yes or no, whether it is possible or not possible, right? And this is how I am actually solving this particular question। But still if you have any doubt or if you have better solution for this particular question, you can still reach out to me on my Telegram channel, or you can ask that to me in the comment section if you have any doubt, okay? Amazing, let's move forward, let's move forward now. Moving forward to the last question of this particular video, this is actually a very interesting question। Question says that what monk is doing, so I think k1 is doing, k1 is doing, k1 is having a number n, k1 is having a number n, okay, and two more numbers a and b। So k1 was actually calculating the value of a into n minus b, ठीक है, a into n minus b, but he by mistake considered n as the string। मान लो कि n की वैल्यू आपकी थी 10, ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 10 थी तो आप सिंपली a इंटू एन माइनस बी निकाल लोगे, बट ही हैज कंसिडर्ड 10 एज अ स्ट्रिंग।
तो when 10 is a string and you will multiply something with string, तो in Python actually this happens, or you can consider कि जो आपकी string है it get repeated that number of time. तो मान लो a आपका 5 है, तो this a into this 10 will become 10 10 10 10 10 5 times, ठीक है। और उसमें अगर हम माइनस बी कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू देम माइनस बी मीन्स कि बी नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखो हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे इसमें भी। आई विल डू वन। और हाँ, अब सब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको बताने हैं ऐसे पेयर ऑफ ए एंड बी, यू हैव टू फाइंड पेयर्स ऑफ ए एंड बी सच दैट दोनों ही केसेस में आपका आंसर इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल सी, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर हम हमारा n मान लो 2 है, तो हम आप देखो अगर हम a को 20 लें और b को 18 लें तो हमारा केस बन रहा है। हाउ, देखो फर्स्ट लेट्स हैव द सिंपल मैथ्स इक्वेशन a into n minus b. If you will do a into n minus b, it will become 40 minus 18 22. अब ऐसे करते हैं 2 into 20 minus 18 मतलब माइनस b, तो 2 into 20 means that 2 will be repeated 20 times, and when 2 will be repeated 20 times I will subtract 18 from it, so 18 times it will be gone, तो बचेगा कितना 2 2 times, so you can see here also it's 22, here also it's 22, ठीक है। and we have to find all those a and b where this condition is actually satisfied, जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो आई हैव एक्चुअली ट्राइड इट अ लॉट एंड इट वाज गिविंग टीएलई इन द कोड। एक्चुअली टीएलई क्यों दे रहा था, आई गॉट टू नो, वो थोड़ा सा आई वाज यूजिंग सब स्ट्रिंग एंड ऑल, बट इस कोड में इट इज़ नॉट गिविंग एनी टीएलई, ठीक है। देखो कोड क्या है कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉन्सेप्ट समझना हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि वी विल गेट, अब देखो हमें क्या करना है, वी हैव टू एक्चुअली प्रिंट ऑल द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी जिसमें ऐसा पॉसिबल होगा। तो अगर प्रिंट है मीन्स आई हैव टू आइट्रेट थ्रू ऑल द वैल्यू, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नंबर्स बन रहे हैं बेसिकली व्हेन वी आर कंसिडरिंग ए एज अ स्ट्रिंग, तो ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल होंगे। तो अब देखो 20 बन सकता है, देन 202, देन 2020, देन 20202, देन 202020 एंड सो ऑन। इस तरीके से नंबर्स पॉसिबल होंगे व्हेन यू विल एक्चुअली टेक। तो मान लो कि अगर आपका n, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, मैं तो a को रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी हमें रिपीट करना है n को, ठीक है। लेट मी टेक अ बेटर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इफ योर n इज 12, इफ योर n इज 12 एंड लेट्स से इफ योर a इज 5, तो n इंटू a कितना हो जाएगा 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, एंड लेट्स से हमारा b था 5, तो या फिर लेट्स से b इज 7, b इज 7, तो -7 कर लिया, तो मतलब क्या हुआ कि 7 डिजिट्स आर गॉन, तो आउटपुट विल बी 1 2 1 2 1, दिस विल बी योर आउटपुट, ये आपका आउटपुट हो जाएगा, राइट राइट। अब दिस आउटपुट शुड बी एक्चुअली इक्वल टू द रियल वैल्यू ऑफ this 12 into 5 minus 7. This output should be equal to the real value of 12 into 5 minus 7. तो हम क्या करेंगे, we will check for all the possibilities of this and for all the possibilities of A and B, क्या पॉसिबल है। देखो पहली बात तो ये है कि वैल्यू ऑफ B जो रेंज कर रही है वो रेंज कर रही है फ्रॉम 1 to 1000, और आई विल से फ्रॉम 1 to मिनिमम ऑफ 1000 कॉमा A into N, और जो वैल्यू ऑफ ए होगी वो भी सेम रेंज में लाई करेगी, ओके नॉट 1000 10,000 सॉरी, एंड द वैल्यू ऑफ ए विल ऑल्सो लाइज इन द सेम रेंज। क्यों सेम रेंज में लाई करेगी, बिकॉज गाइज ऑब्वियसली इफ वी आर हैविंग एन एंड इफ यू आर मल्टीप्लाइंग ए विथ एन एंड आई वॉन्ट दिस वैल्यू एंड आई वॉन्ट दिस वैल्यू माइनस बी, ठीक है। तो अगर ए बहुत बड़ा हो जाएगा तो दिस वैल्यू विल ऑल्सो बिकम वेरी लार्ज, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं, बिकॉज हमें ये वैल्यू कंपेयर करनी है विथ अ रियल स्ट्रिंग, तो यू कैन थिंक ऑफ इट। तो बेसिकली जो ए की रेंज होगी वो भी 1 से लेके 10,000 के बीच में ही होगी, राइट। तो हम कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल
गेट ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो पॉसिबल हो सकती हैं। तो देखो मान लो हमारा ए 12 है, तो एक स्ट्रिंग पॉसिबल होगी 1 2, फिर 1 2 1, फिर 1 2 1 2, 1 2 1 2, 1 2 1 2, 1 2 1 2। सो बेसिकली वी विल गेट रिपीटिशंस ऑफ ए, और क्योंकि हम उसमें बी रिपीट भी माइनस भी कर सकते हैं, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा 2a-1, कि 2 बार रिपीट हुआ और फिर एक चला गया। दिस इज जस्ट 2a, दिस इज 2, दिस इज 3a-1। तो दिस इज हाउ वी विल गेट मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी, कि भाई कितने कॉम्बिनेशन पे ये बन सकते हैं। तो अब देखो इन द code what I'm doing is I'm first taking all the multiple combinations of sum जो कि n into 10,000 छोटे हैं, बिकॉज उतना ही बन सकता है। क्यों भाई, क्योंकि a की वैल्यू मैक्स 10,000 जाएगी, तो n into 10,000 में बड़े डिजिट तो बन ही नहीं सकते, तो हम वहां तक जा रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि वी आर टेकिंग a 1 से लेकर 10,000 तक, और हम हर एक पॉसिबिलिटी के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा जो k है वो लेट्स से इज 1 2 1 2 1, एंड हमारा जो n है इट इज़ 1 2। तो अगर हमारा n ये है, k ये है, और लेट्स से a है हमारा 5 या फिर 4, तो इफ a इज 4 n इज 12, n में डिजिट्स कितनी है, लेट्स से नंबर ऑफ डिजिट्स इन n हमने यहाँ स्टोर किया हुआ है, कहाँ पे स्टोर किया है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन n वी कैन स्टोर समवेयर, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हम लोग जो k है हम उसको पहले तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट होगा, सिंपली आई एम सेइंग इसको स्ट्रिंग बनाइए यूजिंग टू स्ट्रिंग। ओके, नाउ आई विल फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। अब वैल्यू ऑफ बी कैसे निकालेंगे हम लोग, जो हमें पता है ए ये है, एन 12 है, तो अगर हम रियल डिवीजन करें तो रियल डिवीजन विल गिव यू, रियल डिवीजन में भी आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 इंटू 4 विच इज 48 आएगी। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि जो वैल्यू ऑफ 48 माइनस बी है वो के इक्वल हो। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो हमें क्या चाहिए, हमें एक वैल्यू के मिली है, एंड ये दिस वैल्यू के इज एक्चुअली द वैल्यू दैट वी वांट टू मेक इक्वल टू। हमें हमारा जो इक्वेशन है ए एन माइनस बी, हमें उसकी वैल्यू भी इस के इक्वल चाहिए। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन है ए इंटू एन माइनस बी, हमें वो के इक्वल चाहिए, तो बी विल एक्चुअली बी ए इंटू एन माइनस के, तो हम बी की वैल्यू निकाल रहे हैं ए इंटू एन माइनस के। देखो आप बात समझना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ चेक की। पहली चीज़ तो सिंपल है कि जो आपकी बी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1000 और एन कॉमा ए होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो वो हमने बेसिक चीज़ पहले तो कंपेयर कर ली, वो तो बहुत बेसिक है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बात समझना, बात समझना। हम सेम अप्रोच ले लेते हैं, हमारा एन 2 है, ए हमारा 20 है। ठीक है, और लेट्स से कि हमारा जो के है वो 22 है, सेम केस। तो हमने निकाला कि भाई बी की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी। तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए इंटू एन माइनस के, तो ए इंटू एन हो जाएगा 40 माइनस के 22 मतलब 80, फिर बी की वैल्यू आ गई 80। ठीक है, बढ़िया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा एक्स का साइज है और जो हमारा के का साइज है वो दोनों सेम है कि नहीं है। सॉरी, एक्स का साइज और जो इवेंचुअली जो वैल्यू ये आई है विच इज़ लाइक आर, हमने यहाँ पे स्टोर किया था, हाँ ये आर, मतलब आर क्या है, आर है हमारा एन का साइज। तो देखो ये तो हमने निकाली रियल इक्वेशन। रियल इक्वेशन मीन्स कि भाई जो एन है वो हमारा 2 है। आप बात समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू से कि व्हेन आई हैव टेकन एन एज 2, ए एज 20 एंड के एज 22, तो हमारा बी 18 आ गया। मतलब व्हेन वी विल डू रियल इक्वेशन, तो जो 20 इंटू 18, सॉरी 20 टू 18 नहीं, ए इंटू एन, सो 20 इंटू 2 माइनस 18 करेंगे तो 22 आएगा। ये हमने निकाल लिया कि जब हम 20 इंटू 2 माइनस 18 करेंगे 22 आएगा। बट क्या ये 22 पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है आना 22, वो ऐसे पॉसिबल है कि अगर हम इस n को 2 बार रिपीट कर दें 22 आ जाएगा। कैसे कर पाएंगे, अगर अगर a इंटू साइज ऑफ n विच इज r माइनस b अगर हमारा इस x डॉट साइज के इक्वल है जो कि 22 आया है, तो पॉसिबिलिटी है। तो अगर a इंटू आर साइज मतलब n का साइज माइनस b इफ इट इज इक्वल टू द साइज ऑफ x,
which is this. That means it's possible. तो इवेंचुअली हम क्या पता कर रहे हैं? इवेंचुअली वी आर फाइंडिंग, एट द लास्ट वी आर फाइंडिंग वन थिंग, एक ऐसी वैल्यू ऑफ b जहां पर अगर हम a इंटू एन माइनस बी करें तो उसकी वैल्यू a इंटू आर माइनस बी के इक्वल है. इसमें r क्या है? r इज द साइज ऑफ n. साइज मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ. ठीक है. So it was also a particularly purely mathematical approach, and for all those pairs we are inserting the value. But still, if you have any doubt, you can ask that to me in the comment section, okay, or the Telegram channel. Thank you for watching this particular video. See you next video.